Hello everybody, I am Kaustubh Mukherjee, an ex-teacher of a reputed CBSE board school of Kolkata. Welcome to my channel KM Tuitions. As you all can see in my board, my details are mentioned over here. I am a BTech graduate in electrical engineering, and from today onwards I will be teaching mathematics and physics in this channel. If you find my videos, my teaching, my lectures interesting and anything valuable, if I am able to impart any knowledge to you, if my knowledge give you any benefits, if my teaching give you any benefits, then please do like, share and subscribe to my videos, and do share my videos to your friends and near and dear ones. And also you are requested to provide your valuable comments so that I can improve my content quality and my teaching ability. So now coming on to the topic, today I will discuss trigonometry. So do you guys have any idea about what trigonometry is? So now our topic of discussion is trigonometry. This is the basic first part of trigonometry, and मैं यहाँ पे सिर्फ trigonometry के लिए जो simple first जो आपको जानना पड़ेगा कि triangles क्या होता है. What is triangles? You need to know first. So trigonometry basically stands for means trigonometry chapter जो है वो आपका है measurement of triangles. हम triangles के measurement को trigonometry बोलते हैं. तो मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल क्या है, हम ट्राइंगल को मेजर क्यों करें, हम ट्रिगोनोमेट्री क्यों पढ़े. अभी एक 9 और 10 का बच्चा, उसको ऐसा लगेगा कि मैं भी जब बच्चा था, मैं भी जब पढ़ता था 9 में 10 में, मुझे भी लगता था कि हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़े क्यों, क्या जरूरत है ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने के लिए, क्या ट्रिगोनोमेट्री ना पढ़ के नहीं हो सकता था, हमको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना क्यों चाहिए. तो ये सारे सवाल मेरे मन में भी आते थे. तो मैंने तब तो शायद मैंने टीचर को भी मैंने नहीं पूछा, लेकिन आज जाके कहीं आपका अगर ये सवाल है तो मैं शायद इसका आंसर दे पाऊं. तब मैंने पढ़ लिया था, लेकिन आज शायद मैं आपको कुछ इस काबिल आंसर दे पाऊं. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी मूव ऑन. आई विल गिव यू दिस आंसर्स sometime later on, after moving on to our next part of this trigonometry. So tri stands for triangles. So this is a figure of a triangle, as you can see. So what is triangle? Now what is triangle? Triangle is a geometrical figure. Triangle is any geometrical figure, closed figure, which is bounded by 3 sides. So it has boundary on 3 sides. This is known as triangle. And you know, if it has boundary on 4 side or more than 3 side, it will be known as polygon. This 4 side boundary figure can be a square, can be a rectangle, can be a rhombus, can be a parallelogram, can be anything depending upon its measurements of sides and various other specifications. So our trigonometry chapter starts from triangle. Now we need to know how many types of triangles are there, or how can we classify triangles. This is the basic thing you must know to move forward in trigonometry. From the triangles can be classified upon by 2 ways. Okay, triangle के 2 तरीके से classification हो सकते हैं. Based on their sides, means based on their length of the sides, it can be classified, and it can also be classified based on the angles, based on the sides and based on the angles. So now our next discussion is the classification of triangles based on the sides and based on their angles. So based on classification based on the sides, triangle can be classified into 3 types. The number 1 is scalene triangle. The second one is isosceles triangle,
and the third one is equilateral triangle. Equilateral triangle. So based on the length of the sides, triangle can be classified in three ways: scalene triangle, isosceles triangle, and equilateral triangle. And now based on the angles, triangle can be classified again in three ways, that is acute angle triangle, the next one is obtuse angle triangle, and the third one is right angled triangle. Now why I have highlighted the right angle triangle is because मैंने ये right angle triangle को highlight किया है इसीलिए क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री के आगे वाला जो हम चीज करेंगे वो सिर्फ इस राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर निर्भर करके, उसके ऊपर बेस्ड हम लोग सम्स करेंगे, उसके ऊपर बेस्ड हम लोग प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। उसी राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही हमारा ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक्स जो है अभी 9-10 में तुम लोग जो पढ़ रहे हो, जो पढ़ोगे, जो सम्स, जो न्यूमेरिकल्स जो हम सीखेंगे वो सब इस राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड करके है। तो हमको राइट एंगल ट्राइंगल को अच्छे से समझना होगा, और जो एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, जो स्केलेन है, आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये सब अगर आप पढ़ना चाहते हो, और मैं भी पढ़ाऊंगा खुद ही, जियोमेट्री के ट्राइंगल्स के सेक्शन में ये सब आएगा। मैं जब जियोमेट्री पढ़ाऊंगा तब ये सब टॉपिक कवर करूंगा। अभी राइट एंगल ट्राइंगल में डायरेक्ट चले जाएंगे, ठीक है। और अगर आप एक काम कीजिए, आप कमेंट सेक्शन में हमें, आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन में आप इंटरेस्टिंग ये वीडियो अगर आपको लगे तो कमेंट सेक्शन में सीधा जाके स्केलेन ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, आइसोसेलेस, ये सब क्या है थोड़ा थोड़ा करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सीधा राइट एंगल ट्राइंगल के तरफ मूव करते हैं। सो नाउ विल स्टडी अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल्स। राइट angled triangles. What does right angle triangles means? Right angle triangle means a triangle which has a right angle. What is a right angle? Right angle means 90 degree. So right angle triangle basically means a triangle which has 190 degree angle, which has an angle which is 90 degree, and the other two angles may be 45, the other two angles may be 30, 60, the other two angles may be anything. One angle should be 90 degree. So this is the basic definition of a right angle triangle. You got it? Now one very important thing of a right angle triangle you will need to know. अब right angle triangle के बारे में कुछ important बातें जो आपको पता होना चाहिए। सपोज इस ट्राइंगल का नाम है ABC। ABC अगर आपको बोला गया है इस ट्राइंगल के तीनों जो दिशाएं है, जो साइड्स है, उसको हम क्या क्या बोलते हैं। आप देखिए ये एंगल है 90 डिग्री। इस 90 डिग्री एंगल के ठीक उल्टा, ठीक ऑपोजिट, द ऑपोजिट ऑफ दिस 90 डिग्री एंगल इज नोन एज हाइपोटिनस। 90 डिग्री एंगल के ठीक ऑपोजिट जो साइड होता है उस साइड को हम बोलते हैं हाइपोटिनस, और डिनोट करते हैं स्मॉल एच या लार्ज एच से। ये आपके बुक के ऊपर डिपेंड है, कोई बुक में स्मॉल एच लिखता है, कोई किसी किताब में लार्ज एच भी डिनोट करता है। तो ये आप देख लीजिएगा, मैं स्मॉल एच से डिनोट कर रहा हूं। और जो दो साइड्स है उसमें से एक को कहते हैं, और जो दो साइड्स है उसमें से एक को कहते हैं बेस और एक को कहते हैं
परपेंडिकुलर। एक साइड को कहते हैं बेस और दूसरे साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर। अब जो चीज हम सबको जानना है कि कौन सा साइड होगा बेस और कौन सा साइड होगा परपेंडिकुलर। आप एक चीज समझ लीजिए कि जिस एंगल के बारे में हमको पता लगाना पड़ेगा, मतलब जिस एंगल को हम कंसीडर करेंगे, जिस एंगल को पकड़ के हम बेस, हाइपोटेनस या परपेंडिकुलर डिटरमाइन करेंगे, वो एंगल जिस साइड पे बैठा है वो है हमारा बेस। समझ में नहीं आया? ठीक है, मैं बोर्ड में करके दिखाता हूं। इट इज वेरी इजी। सो सपोज हमें एंगल सी को पकड़ना है, हमें एंगल सी को पकड़ना है। अगर हम एंगल सी को पकड़े तो फॉर एंगल सी अगर एंगल सी को हम लोग थीटा मान लेते हैं, एंगल सी के हिसाब से ये थीटा कहां पे बैठा है, ये थीटा कहां पे है, ये थीटा बीसी लाइन में है और एसी लाइन में है। ये थीटा बैठा है बीसी लाइन में और एसी लाइन में। तो आप देखिए एसी लाइन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एसी लाइन तो ऑलरेडी हाइपोटेनस है। क्योंकि जो हाइपोटेनस है वो हाइपोटेनस क्या होता है, हाइपोटेनस होता है जो 90 डिग्री एंगल है उसके सामने वाला जो साइड है वो तो हाइपोटेनस है। तो ये तो अगर हाइपोटेनस हो गया तो बचा कौन, बचा सिर्फ बीसी। तो थीटा, अगर हम सी एंगल की बात करें तो जो ये हम थीटा मान रहे हैं इसके लिए फॉर एंगल सी, बीसी इज द बेस, बीसी है हमारा बेस और ए बी है परपेंडिकुलर और ए सी तो हमारा हमेशा ही हाइपोटेनस रहेगा और ए सी हमेशा ही हाइपोटेनस रहेगा। ओके, आपको ये सब समझ में आ गया? फिर से हम कुछ और ऐसे फिगर बना के और सवाल करेंगे ताकि आपको और आसानी से ये बात समझ में आ जाए। देखिए फिर से आ गए हम 3 सवाल लेके। वो जो तीनों चीज के बारे में डिस्कस किया था वही 3 सवाल, जे हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। कौन कौन से ट्रायंगल में कौन कौन सा हाइपोटेनस है, बेस है, परपेंडिकुलर है। अगर आप वो टॉपिक को समझ चुके हैं तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए। मैं डायरेक्ट बोलूंगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो से और अच्छे से क्लैरिफाई कर लीजिए। इफ यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट यू कैन पॉज द वीडियो एंड do it yourself. So now for this figure 1, I need to know the hypotenuse, base and perpendicular for this angle P, that is theta. I have written here theta. So for this angle theta, for this angle P, I need to know the base and hypotenuse and perpendicular. Now first of all I have already told, मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो 90 डिग्री एंगल है, इस साइन से हम 90 डिग्री एंगल को डिनोट करते हैं, ये स्क्वायर वाला साइन। तो जो 90 डिग्री एंगल है उसके ऑपोजिट वाला जो साइड है वही होगा हमारा हाइपोटेनस। क्या होगा, वही होगा हमारा हाइपोटेनस। और ये हमको कौन सा एंगल चाहिए, हमको जो एंगल चाहिए वो है P वाला, मतलब P को हम थीटा पकड़े हैं। तो वो थीटा, बेस क्या होता है, बेस इज द साइड ऑन व्हिच द एंगल सिट्स, जहां पे एंगल बैठा है। तो ये एंगल कहां बैठा है, P और R में बैठा है और P और Q में बैठा है। P और R तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि P और R तो पहले ही हाइपोटेनस है, Q एंगल 90 डिग्री के ऑपोजिट है। तो कौन सा बेस होगा, बेस होगा ये वाला P और Q, और Q और R, तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो Q और R क्या होगा, Q और R होगा परपेंडिकुलर। ओके, गुड, ऑल गुड। सो नाउ मूविंग ऑन टू द फिगर 2।
in this figure to angle A is 90 degree. As angle A is 90 degree, so the side BC will be hypotenuse. As side BC is hypotenuse, now for angle C, the theta is here. So for angle C, AC will be the base, because theta sits on H and theta sits on AC. So as BC is already H hypotenuse, BC already hypotenuse बन गया है, तो बेस कौन बनेगा? बेस बनेगा AC. और जो रहा है, मतलब जिसके पास कुछ नहीं है, वो क्या होगा? परपेंडिकुलर. ये परपेंडिकुलर बन गया बेचारा. अब इस फिगर में आते हैं. यहाँ पे तो D 90 डिग्री है, ट्राइंगल FDE में D 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का ऑपोजिट क्या है? FE. ये FE बन जाएगा हमारा H, मतलब हाइपोटेनस. और हमको निकालना कहाँ है? हमको F नहीं निकालना है, हमको E निकालना है. अब ये E, ये ईटा है, ये जो E है, दिस E एंगल सिट्स ऑन F एंड E and E and D. So F and E is already hypotenuse. So E and D will be the base and F and D will be the perpendicular. Now I think you all have understood the concept of base, hypotenuse and perpendicular in a right angle triangle. This thing is the most basic thing to learn the trigonometrical ratios to solve trigonometry problems. These things you must need to know. Again, another thing that you need to know about the right angle triangle, a property, a principle, a theorem, you can say. This is the Pythagoras theorem. Pythagoras gave us a theorem which is known as Pythagoras theorem for the measurement of sides of a right angle triangle. जो right angle triangle हम लोग पढ़ रहे हैं, उस right angle triangle की जो भुजाएं है, जो हम लोग साइड्स है, उसको मेजर करने के लिए जो थ्योरम हम अप्लाई करते हैं वो है पाइथागोरस थ्योरम. नाम हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम है क्या. सो हमारा जो ट्रायंगल है वो है ये. मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है जिसकी भुजाएं है ए बी और सी, जिसकी भुजाएं है ए बी बी सी और सी ए. तीनों भुजाएं है और जो तीनों पॉइंट है इस ट्रायंगल्स की ए बी एंड सी, एंड बी इज 90 डिग्री. सो अगर बी 90 डिग्री है, मान लीजिए बीसी जो है वो है बेस. मान लीजिए बीसी जो है वो है बेस. अगर हम सी एंगल की बात करें तो बीसी बेस है. ए की बात करें तो ए भी बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा. बीसी की बात कर रहे हैं तो बीसी बेस है, ये हो गया परपेंडिकुलर. और ये क्या है? ये तो फॉरएवर हाइपोटेनस है. ये तो फॉरएवर हाइपोटेनस है. एंगल बी के ऑपोजिट 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड फॉरएवर हाइपोटेनस है. तो पिथागोरस भाई साहब क्या बोल रहे हैं? पिथागोरस भाई साहब बोल रहे हैं, साइंटिस्ट मैथमेटिशियन पिथागोरस जी बोल रहे हैं कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है, मतलब ये जो हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है? इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. पिथागोरस भाई साहब बोल रहे हैं कि हाइपोटेनस का जो साइड, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब इसकी जो साइड है, इसकी जो भुजा है एसी का लेंथ, ये जो एसी का लेंथ है, द लेंथ ऑफ एसी इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू जो बीसी का लेंथ है, जो बेस है, उस बेस का लेंथ का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के लेंथ का स्क्वायर. मतलब अगर हम इसको एबीबीसी के टर्म्स में लिखे, इसका मतलब जो होगा, इसका मतलब होगा कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. ये है पाइथागोरस थ्योरम. आपको समझ में आ गया? मतलब यहां से हम ट्रायंगल का अगर एक साइड दिया रहता है तो दूसरा साइड निकाल सकते हैं. मतलब दो साइड दिया रहेगा तो एक साइड हम लोग निकाल सकते हैं. ठीक है, देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं. मैं इसको रब कर रहा हूं. कैसे निकाल सकते हैं हमको देखना पड़ेगा. अगर मान लीजिए हमको AB 3 दिया है और BC 4 दिया है, ठीक है,
ए बी हमको 3 दिया है, BC 4 दिया है, हमको हाइपोटेनस पता नहीं, हाइपोटेनस हमको पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमको पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू जो AB का स्क्वायर है और जो BC का स्क्वायर है। तो AB का स्क्वायर क्या है 3 का स्क्वायर और BC का स्क्वायर क्या है 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, आप करके देख सकते हैं। तो दोनों का सम करके क्या होगा 25, तो दोनों का सम करके हमारा हुआ 25। तो हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर का वैल्यू है 25, तो हाइपोटेनस होगा रूट अंडर 25। हाइपोटेनस क्या होगा रूट अंडर 25। रूट अंडर 25 मीन्स 25 को अगर हम तोड़ के लिखेंगे तो 5 इंटू 5 होगा 25। अगर हमारे पास रूट है और अंदर 2 5 है तो बाहर कितना 5 निकलेगा, सिर्फ एक 5 बाहर निकलेगा, तो हाइपोटेनस का वैल्यू हो जाएगा 5, ओनली 5। तो अगर ये 3 है ये 4 है तो ये हो गया क्या 5। अगर ये 3 है ये 4 है तो ये क्या हो जाएगा 5। तो हम लोग कह सकते हैं इसमें से कि जो पिथागोरियन ट्रिपलेट है 3, 4, 5 इज ए पिथागोरियन ट्रिपलेट। मतलब इसका लेंथ अगर 3 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर का बेस का अगर 4 सेंटीमीटर है, तो हाइपोटेन्यूज का ऑब्वियसली 5 सेंटीमीटर लेंथ होगा। तो ये तीनों पिथागोरियन ट्रिपलेट है। ये याद रखने वाली चीज है, इसको याद रखिएगा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और हाइपोटेन्यूज बेस का कुछ पिथागोरियन ट्रिपलेट। और ये जो आंसर आया 3, 4 और 5, इसे कहते हैं हम पिथागोरियन ट्रिपलेट, क्योंकि ये फॉलो करता है पिथागोरियन लॉ को। मतलब अगर हम किसी भी आर्बिट्रेरी वैल्यू को ले ले 2, 3 तो ये नहीं आएगा, ये 5 ने ये होल नंबर नहीं आएगा, या फ्रैक्शन में, ये पॉइंट में आएगा। तो यहाँ पे 3, 4 और 5 तीनों होल नंबर में आ रहा है, इसीलिए हम इसे पिथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। ओके, नाउ यहां तक अगर आपको सब समझ में आ गया है तो बहुत अच्छा है। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री, अब जो ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो का चीज है हम उस पर आगे बढ़ेंगे। और अगर नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट में जनाइए, कमेंट में आप हमको बताइए, हम कोशिश करेंगे इसको और डिटेल्स में आपको पेश करने के लिए। आई विल प्रोवाइड यू मोर डिटेल्स ऑफ this Pythagoras theorem and the concept of hypotenuse, base and perpendicular to you. I will provide you more questions. I will obviously provide you more questions in my comment section. I will make a PDF and I will give it to you. You can solve those questions. धीरे धीरे ट्रिगोनोमेट्री की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे हमने पहले सीखा कि राइट ट्राइंगल्स कितने प्रकार के होते हैं, बेस्ड ऑन एंगल्स ट्राइंगल्स कितने प्रकार के होते हैं, और हमने राइट एंगल ट्राइंगल्स के बारे में थोड़ा सा और जानकारी हासिल किया कि राइट एंगल ट्राइंगल्स के तीनों साइड्स को क्या क्या कहते हैं। फिर से एक बार बता रहा हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल के जो 90 डिग्री के ऑपोजिट में साइड होता है, 90 डिग्री के ठीक आमने सामने जो साइड होता है उसको कहते हैं हाइपोटेनस। बेस कौन सा एंगल होता है, बेस होता है जिस एंगल में जो एंगल जिस साइड में बैठा होता है। बेस हमेशा होगा कि एक हाइपोटेन्यूज में बैठा रहेगा और एक हाइपोटेन्यूज के अलावा और एक साइड में बैठेगा एंगल, जहां पे एंगल बैठेगा, हम जहां जिस चेयर में बैठते हैं वैसे ही एंगल किसी साइड के ऊपर सपोर्ट रखता है। वो जो सपोर्ट रखेगा जिस साइड के ऊपर हाइपोटेन्यूज के अलावा, उसे हम बेस कहेंगे, और जो थर्ड साइड रहेगा वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने स्टडी किया आज की पिथागोरियस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरियस थ्योरम के वजह से किसी भी ट्रायंगल के अगर 2 साइड हमको पता है तो हम थर्ड साइड इजीली वहां से निकाल सकते हैं। हमको अगर परपेंडिकुलर और बेस दिया है तो हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, हमको अगर हाइपोटेन्यूज और बेस दिया है तो हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, हम किसी भी साइड को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम पिथागोरस थ्योरम में और जाएंगे। पिथागोरस थ्योरम का चैप्टर कहीं और है, कहीं जियोमेट्री में, ट्राइंगल्स में कहीं और है, तो हमको पढ़ना है आज ट्रिगोनोमेट्री। तो हम सीधा आप ट्रिगोनोमेट्री के कॉन्सेप्ट पे घुसेंगे।
तो आज का जो ट्रिगोनोमेट्री का आज का पार्ट 1 का वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री में जो मैं आज पढ़ाऊंगा वो है बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। तो रेशियो क्या है? फर्स्ट हमारा चीज जो आंख है वो इस रेशियो वर्ड में अटक गया है। रेशियो भाई सब है क्या? रेशियो चीज क्या है? हमने बहुत सुना है रेशियो रेशियो रेशियो। ये रेशियो है क्या? रेशियो है जब हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को जब हम कंपेयर करते हैं उसी जैसी किसी चीज से, तब वो रेशियो बनता है। मतलब आप अपने पैसों से अपने भाई के पैसों को कंपेयर कर रहा है। मतलब आपके पास है 100 रुपया, आपके पास भाई के पास है 200 रुपया, तो आप दोनों का रेशियो हो जाएगा 1:2। रेशियो तभी होता है जब आप एक ही क्वांटिटी, मतलब यहाँ पे पैसा बाय पैसा हो रहा है, तो मतलब एक ही क्वांटिटी को एक ही टाइप के दो क्वांटिटी को अगर आप कंपेयर करोगे तो उसको कहते हैं हम रेशियो। तो रेशियो का मतलब क्या रहा कि अगर एक ही टाइप के 2 क्वांटिटियों को, 3 क्वांटिटियों को, 4 क्वांटिटियों को, 10 क्वांटिटियों को अगर आप कंपेयर करोगे तो उसको जो वैल्यू आएगा उसको हम रेशियो कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब हम चले जाएंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में जो चीज है हमारे पास क्या है? हमने बोला ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने के लिए हमारे पास जरूरत है सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल की, जहां हाइपोटेनस है ये सब मान लीजिए बेस, ये मान लीजिए परपेंडिकुलर। हमारे पास 3 साइड्स होगा और ये इस 3 साइड्स को डिनोट करके, इस 3 साइड्स को रख करके हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है। कितना? 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता है, जिससे हम अभी मेंशन करेंगे। सबसे पहला वाला रेशियो साइन, क्या है? SINE, साइन। सेकेंड रेशियो क्या है? कोसाइन। थर्ड रेशियो क्या है? टेंजेंट। फोर्थ रेशियो क्या है? कोटेंजेंट। फिफ्थ रेशियो क्या है? सेकंड। और सिक्स्थ जो हमारा रेशियो है, फर्स्ट है साइन, सेकंड है कोसाइन, थर्ड है टेंजेंट, फोर्थ है कोटेंजेंट, फिफ्थ है सेकंड और सिक्स्थ जो रेशियो है उसको बोलते हैं कोसेकेंड। कोसेक ENT, कोसेकेंड। 6 जो रेशियो है उसको बोलते हैं कोसेकेंड। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये जो मैंने लास्ट बार बोला, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, ये जो बोला मैंने, ये उनका शॉर्ट फॉर्म है। साइन को हम लोग अब देखते हैं हम लोग कैसे लिखते हैं, डिनोट कैसे करते हैं इसको। साइन को हम लोग डिनोट करते हैं SIN। याद रखना हमेशा, जब आप एग्जाम में, किसी भी परीक्षा में या किसी भी टीचर के पास अगर आप इसको लिखोगे, अगर आपका प्राइवेट ट्यूटर भी है, स्कूल का ट्यूटर भी है, आपको अगर नहीं बोलेगा कि आप S को कैपिटल लिख के आ गए, तो S को T को C को किसी भी चीज को यहाँ पे कैपिटल नहीं लिख सकते। आपको लग रहा होगा कि मैंने कैपिटल लिखा है तो गलत है, इसको कैपिटल में नहीं लिखेंगे, इसको स्मॉल में लिखेंगे। ठीक है, सब चीज को स्मॉल में लिखेंगे। तो SIN, साइन को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं साइन, SIN, सीन। फिर इसको कोसाइन को लिखते हैं कॉस, टेंजेंट को लिखते हैं हम टेन, कोटेंजेंट को हम लिखते हैं कॉट, सेकेंड को हम लिखते हैं सिर्फ सेक, और कोसेकेंड को लिखते हैं हम, साइन को हम लिखते हैं साइन, कोसाइन को लिखते हैं कॉस, टेंजेंट को लिखते हैं टेन, कोटेंजेंट को लिखते हैं कॉट, सेकेंड को लिखते हैं सेक, और कोसेकेंड को हम लिखते हैं कोसेक, COSEC, कोसेक। ये जो मैंने लिखा है ये सब शॉर्ट फॉर्म है।
ये जो 6 रेशियोज है, इस 6 रेशियोज का फुल फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म है ये। हम लोग ऐसे चीज को डिनोट करते हैं। तो फिर से बता रहा हूं, जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है वो मैंने अभी बोर्ड पे लिखा था, अभी रब कर दिया। आप पॉज करके कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए क्या क्या रेशियोज है। साइन, नंबर 1 इज साइन, नंबर 2 इज कोसाइन, नंबर 3 इज टेंजेंट, नंबर 4 इज कोटेंजेंट, नंबर 5 इज सेकेंड एंड नंबर 6 इज कोसेकेंड। अब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट। साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक एंड सेक। ये हमारा 6 रेशियोज है। जो पहला लेटर है वो सब स्मॉल लेटर होगा, कोई भी कैपिटल लेटर नहीं लिखिएगा, गलत हो जाएगा। शायद आपका टीचर आपको करेक्ट करके मार्क्स दे दे, लेकिन ये गलत है। सब स्मॉल लेटर में होगा, सब स्मॉल लेटर में डिनोट करेंगे। अब मैं आपको एक राइम सिखाने वाला हूं, आप ये राइम रट लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला मैं बता दूंगा तो आपको याद तो रहेगा नहीं। आपके दिमाग में खेलना होता है, कूदना होता है, घूमना होता है, तो फॉर्मूला आपको याद रहेगा नहीं। तो एक राइम हम लोगों के टीचर ने भी राइम सिखाया था। मैं भी जब स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ मैं भी राइम सिखाता हूँ। ये राइम अगर आप रट लेंगे तो सम्स हम लोग आसानी से सम्स कर पाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा राइम पे जाता हूँ। राइम जो है वो है, सम pupil have curly brown hair, comma, turns perfectly black। क्या है हमारा राइम? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परफेक्टली ब्लैक। फिर से बोल रहा हूं, सम पीपल हैव, कुछ लोगों के पास कर्ली ब्राउन हेयर होता है, वो कुछ समय बाद अपने आप ही ब्लैक हो जाते हैं, परफेक्टली ब्लैक हो जाते हैं। तो हमारा राइम है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परफेक्टली ब्लैक। सो इस राइम, मैंने ये राइम आपको क्यों सिखाया, यहां पे मैं आता हूं। देखिए, सम पीपल हैव, इन तीनों चीज को आप गौर से देखिए। सम पीपल हैव, सम से हमारा होगा क्या? साइन। सम का एस मतलब हमारा साइन, सम का एस मतलब हमारा साइन। प्यूपिल हैव मतलब ये सब क्या है? ये सब रेशियो है। मैंने आपको पहले ही बोला था, ये जो 6 चीज है, ये 6 चीज हमारा रेशियो है। तो साइन क्या होगा? कुछ बाय कुछ, मतलब ऊपर कुछ होगा, नीचे कुछ होगा। साइन होगा कुछ डिवाइडेड बाय कुछ। तो कुछ डिवाइडेड बाय कुछ, क्या कुछ है? साइन है, प्यूपिल और हैव, सम प्यूपिल हैव। तो साइन जो है वो P और H का रेशियो है। क्या रेशियो है? P और H का। अब आप सबको पता है, आप हंस भी रहे होंगे कि P क्या है, H क्या है। P तो मैं किसको लिख रहा हूं? P में लिख रहा हूं परपेंडिकुलर को, मैं P लिख रहा हूं परपेंडिकुलर को। H तो क्या होगा? H होगा हाइपोटेनस। तो साइन क्या है? साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का रेशियो है साइन। साइन क्या चीज है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का रेशियो है साइन। अब आता हूं कॉस में, ध्यान से देखिए। फिर ये 3 तो हो गया, सम पीपल हैव तो हो गया। फिर क्या क्या चीज है? कर्ली ब्राउन हेयर। आफ्टर सम पीपल हैव वी हैव 3 words. Each 3 words means 3 terms of trigonometric ratios. So after some people have, we have curly brown hair.
What does curly brown hair denotes? Curly brown hair, curly starts from C. So our which trigonometric ratio has C after sine? After sine, C is only in cos. After sine, C is only in cos. So we'll write curly for cos. Now brown hair we will write B by H. Now everybody you know B means base and H means hypotenuse. I am writing in short. Okay. HYPT. So B means base and H is hypotenuse. So cos is base by hypotenuse. Sine is perpendicular by hypotenuse. You should remember this. So आपको कितना आसान हो गया कि ये राइम अगर आपको याद आ जाए तो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज भी याद आ जाएंगे. बहुत ही आसानी से, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है. बहुत ही आसानी से, बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये याद रहेंगे. Some people have curly brown hair turns perfectly black. So sine is equal to P by H, that is perpendicular by hypotenuse. Cos is equal to B by H, that is base by hypotenuse. Okay, now I am rubbing the triangle for writing the next part. So now only what left? Only in the rhyme turns perfectly black is left. So what is turns? Turns stand for tan. Turns T stands for tan. So what is tan? Tan is perfectly black, means tan stands for P by B. Now here is no hypotenuse. In the above two, in cos and sine, there is hypotenuse in the denominator. Denominator means नीचे की तरफ hypotenuse रहता है रेशियो में. आप इस हिसाब से भी याद लगा सकते हैं. साइन और कॉस दोनों में हाइपोटेनस रहता है नीचे की तरफ. और जो tan है, tan में कोई हाइपोटेनस है ही नहीं. tan डिपेंड करता है किसमें? परपेंडिकुलर और बेस में. P और B मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस. तो tan सिर्फ डिनोट करता है परपेंडिकुलर और बेस में. साइन डिनोट करता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में. कॉस को हम लोग लिख सकते हैं बेस बाय हाइपोटेनस और tan को हम लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस. हम इस तीन तरीके से इस कविता को, इस लाइन को, इस राइम को हम याद करके हम इस तीन फॉर्मूले को आसानी से याद कर सकते हैं. मैं फिर से बता रहा हूं. लाइन क्या है? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परफेक्टली ब्लैक. So some people have means sine is equal to perpendicular by hypotenuse S, P and H. S is equal to P by H. C is equal to B by H. Cos is equal to base by hypotenuse. Base by hypotenuse and T, P, B. T is equal to P by B. P means tan is equal to perpendicular by base. This is the basic of first three trigonometric ratios. And the next three trigonometric ratios are very easy. So first of all you need to know about only this rhyme and these three trigonometric ratios. Okay, now I am moving on to the, now I am rubbing this part. Now I am moving on to the rest three trigonometric ratio. If you know the rest three, first is sine, second is cos, third is tan. So the fourth is cot. Fourth is cot. So what is cot? Cot is nothing but 1 by tan. tan का उल्टा. cot क्या है? tan का उल्टा. cot है tan का उल्टा. ऊपर 1 है डिवाइडेड बाय tan. tan का जो वैल्यू, अगर मान लो tan का वैल्यू 5 है तो cot होगा 1 by 5. अगर मान tan का वैल्यू 0.5 है तो cot होगा 1 by 0.5. मान लो tan का वैल्यू 5 नहीं होता है, वो अलग बात है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. tan का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, साइन का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे. अभी जो पढ़ा रहा हूं उसके हिसाब से cot है 1 by tan. मतलब अगर tan P by B है तो cot क्या होगा? cot होगा B by P. उल्टा हो जाएगा. tan P by B है मतलब
परपेंडिकुलर बाय बेस है तो कॉट होगा बेस बाय परपेंडिकुलर। नाउ हम दूसरा चीज देखते हैं। फोर्थ तो हो गया। अब हम मैं इस टेबल को रब कर रहा हूं। आप स्क्रीनशॉट लेके ये याद कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए जिसमें आपका आसानी होगा याद रखने के लिए। मोबाइल में आप अगर मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए, जो आप चाहे वो कर सकते हैं। तो कॉट हो गया। फिर हमारा 5 नंबर वाला रेशियो आएगा। 5 नंबर वाला रेशियो क्या बोला मैंने? पहला वाला बोला है साइन, नेक्स्ट वाला बोला है कॉस, थर्ड वाला बोला है टेन, फोर्थ वाला बोला है कॉट। ना फिफ्थ क्या है? साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, फिर होगा हमारा क्या? सेक। क्या होगा? SEC, सेक। ये सेक क्या है? सेक है कॉस का उल्टा। क्या है? सेक इज 1/cos, मतलब कॉस रहेगा डिनोमिनेटर में, कॉस रहेगा डिनोमिनेटर में और 1 रहेगा न्यूमरेटर में, मतलब ऊपर। कॉस रहेगा नीचे, 1 रहेगा ऊपर। अगर कॉस है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस है B/H, तो सेक क्या होगा? सेक होगा H/B, मतलब हाइपोटेनस बाय बेस। बहुत ही इजी, बहुत ही इजी। आप यहां से पढ़िए, बहुत ही इजी है। फिर 5 रेशियो कंप्लीट हो गया। नंबर 6 जो है, अब देखिए साइन, कॉस और टेन, ये 3 है हमारा मेजर रेशियो। इसके ही उल्टे हो रहे हैं हमारा 4, 5 और 6। फर्स्ट तीनों का ही उल्टा हो रहा है, 4 और 5 और 6। अभी तक टेन का तो उल्टा हो गया, कॉस का तो उल्टा हो गया सेक, टेन का उल्टा हो गया कॉट, तो साइन का भी तो उल्टा होना चाहिए कि नहीं? साइन का भी उल्टा होना चाहिए। तो साइन को अगर हम उल्टा करेंगे, मतलब साइन है P/H, अगर हम H/P निकालना चाहते हैं रेशियो, उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कोसेक। उसको कहेंगे कोसेक, जो होता है 1/sin। साइन का भी उल्टा होता है, जो होता है कोसेक, COSEC, जो होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, जो होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, और साइन का उल्टा। तो आप इस 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को याद कर लीजिए। ये तो पहला काम है। आप उस टेबल को, उस टेबल तो नहीं कह सकते, उसको हम राइम कह सकते हैं, उस छोटे से 1 लाइनर राइम को आप याद कर लीजिए। उस 1 लाइनर राइम से आपको इन तीनों का मिल जाएगा, साइन, कॉस, टेन, इन तीनों का आपको फॉर्मूला याद रह जाएगा। अगर इन तीनों का फॉर्मूला याद रह गया तो टेन, कॉट और कोसेक का भी आपको मतलब कॉट, कोसेक एंड सेक, आई एम सॉरी, कॉट, कोसेक एंड सेक, उसको भी आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक का उल्टा दूसरा है। अगर आप थोड़ा सा न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर लिख दे, डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर लिख दे, तो पिछले मतलब लास्ट वाला 3, 4, 5 और 6 आपको आसानी से आ सकता है। ठीक है, तो मैं एक सम, आज के लिए मैं एक सम, वो 3, 4 और 5 वाला जो फिगर है, उस 3, 4 और 5 वाले फिगर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके इस सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू वहां पे पुट करूंगा, तो आप वो वाला चीज देख लीजिए। ठीक है, मैं सब चीजों को रब कर रहा हूं, आप शायद लिख लिए हैं, लिख चुके हैं, याद कर चुके हैं। अगर किसी भी जगह में आपको डाउट हो रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करके आप फिर से वीडियो को चला के देखिए। मेरे ख्याल से आपका डाउट चला जाएगा। अगर आपका डाउट नहीं गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं आपका डाउट किसी और तरीके से रिजॉल्व कर पाऊं, किसी और वीडियो में अच्छी तरीके से बोल के मैं आपका डाउट सॉल्व कर पाऊं। और ये एक चीज, ट्रिगोनोमेट्री हमारे लाइफ में क्यों लगता है, मैंने पहले बोला था, मैं आज बता पाऊंगा आपको। पहले मैं जब स्टूडेंट था तब नहीं बता पाया, वो मैं बताऊंगा जरूर, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री खत्म हो जाने के बाद आपको सस्पेंस में रख के, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। अभी ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक सम कर रहे हैं। तो मान लेता हूं वही ट्रायंगल ABC, B 90 डिग्री है, तो ये हो गया हाइपोटेनस,
इसका वैल्यू क्या था 5, इसका वैल्यू 3 था, मान लीजिए इसका वैल्यू 4 है, और हमको निकालना क्या है, ये थीटा है, मतलब हमको सी के रेस्पेक्ट में फॉर एंगल थीटा और यू कैन से एंगल सी, हमको सारे वैल्यूज निकालना है। तो हमारा पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है, साइन। हमारा पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है साइन, हमको साइन निकालना है। साइन क्या, साइन सी भी लिख सकते हैं हम, और हम इसको साइन थीटा भी लिख सकते हैं। हमको साइन सी और साइन थीटा निकालना है, मतलब थीटा के रेस्पेक्ट में, सी की रेस्पेक्ट में हमको साइन का वैल्यू निकालना है। तो क्या है, हमने क्या पढ़ा अभी, साइन मीन्स सम प्यूपिल हैव, तो साइन इज प्यूपिल हैव, P by H, तो P क्या है 4, ये P है, ये B है, तो P क्या है 4 और H क्या है 5, तो साइन इज 4 by 5। नाउ we'll go to cos। तो what is cos? Cos is curly brown hair। तो curly means cos, brown hair means B by H। तो B by H क्या है, B by H है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है 3, हाइपोटेन्यूज क्या है 5, तो ये है 3 by 5, ये है 4 by 5। साइन सी हो गया 4 by 5, cos सी और cos थीटा, cos सी cos थीटा एक ही बात है, एक ही चीज को डिनोट कर रहा है सी और थीटा। तो cos सी और cos थीटा को हम लिखेंगे B by H और 3 by 5। तो दो रेशियोज हमारा हो गया, साइन और cos। अब बारी है tan की। अब क्या, अब किसकी बारी है, tan सी और tan थीटा की। tan सी और tan थीटा एक ही चीज है। तो टर्न्स, राइम क्या था, टर्न्स परफेक्टली ब्लैक, P by B, P क्या है हमारा 4, B क्या है 3, तो 4 by 3 है हमारा tan का वैल्यू। फिर इसके हिसाब से नेक्स्ट वाला चीज क्या होगा, साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया। अब क्या लिखेंगे हम, साइन का उल्टा। साइन का उल्टा क्या बोला मैंने, कोसेक। मैंने साइन का उल्टा क्या बोला, कोसेक। कोसेक क्या है, कोसेक सी और कोसेक थीटा, कुछ भी आप लिख सकते हो, कोसेक सी भी लिख सकते हो, कोसेक थीटा भी लिख सकते हो। वो क्या है, वो साइन सी व साइन थीटा का जो है वो ऑपोजिट है, वो इसका 1 by है, उल्टा है। तो अगर ये P by H है तो ये क्या होगा H by P, तो क्या होगा 5 by 4। तो हमको कोसेक भी आ गया, हमारा 4 रेशियोज कंप्लीट हो गया। अब कॉस का उल्टा करते हैं। कॉस का उल्टा क्या है, सेक। कॉस का उल्टा सेक है, सेक थीटा लिख सकते हैं, सेक सी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 1 by कॉस सी या कॉस थीटा, कुछ भी लिख सकते हैं। तो 1 by कॉस सी कॉस थीटा क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज कॉस है, तो हमको इसका यहाँ पे हाइपोटेन्यूज बाय बेस करना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज क्या है 5, बेस क्या है 3, ये 5 by 3 है आंसर इसका। तो हमारा 5 चीज हो गया, क्या क्या होगा, साइन थीटा हुआ, कॉस थीटा हुआ, टेन थीटा हुआ, कोसेक थीटा हुआ, सेक थीटा हुआ, और बाकी क्या है, बाकी है सिर्फ टेन थीटा, बाकी है सिर्फ टेन थीटा। तो हमको टेन थीटा तो हो गया है, बाकी है सिर्फ टेन का उल्टा, टेन थीटा का उल्टा। टेन थीटा का उल्टा क्या है, कॉट थीटा। टेन थीटा का उल्टा है कॉट थीटा, और हम इसको कॉट सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि सी एंगल को ही हमको निकालना है। सी एंगल को हमने अलग से नाम दिया है थीटा, इसीलिए थीटा लिख रहा है कहीं पे सी लिख रहा है। आप किसी भी एक चीज को लिखिए, अगर थीटा लिखना है तो थीटा लिखिए, अगर सी लिखना है तो आप सी लिखिए। मेरे जैसे दो चीज को ना लिखिए, मैं दो चीज को लिख रहा हूं इसीलिए, क्योंकि सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। सो कॉट थीटा एंड कॉट सी, ये क्या है, ये टेन का ऑपोजिट है। ये टेन थीटा और जो हम बोल रहे हैं टेन सी, उसका ऑपोजिट है। तो हम इसका ऑपोजिट क्या है, टेन है P by B, तो ये B by P हो जाएगा, मतलब 3 by 4 हो जाएगा। तो हमारा 4 मिल गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, हमारा 6 का 6 रेशियो कंप्लीट हो गया, जो किसको डिनोट कर रहा है, इस फिगर को डिनोट कर रहा है। फिर मैं एक चीज बोल रहा हूं, फिर ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा। कब उल्टा पुल्टा होगा, अगर मैं थीटा को यहां ना लिख के ए पे लिखूं, तब पूरा उल्टा पुल्टा हो जाएगा। क्यों होगा उल्टा पुल्टा, मैंने पहले ही वीडियो के पहले ही शुरू में ही बता दिया था
कि अगर मैं इसको इसके हिसाब से लूं तो हाइपोटेनस तो यही रहेगा, लेकिन ये एंगल बैठ कर रहा है, ये एंगल यहाँ पे बैठ रहा है एबी पे, तो ये जो साइड है 4 ये बेस हो जाएगा और ये साइड 3 जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अभी सी 3 पे है मतलब सी बेस है, अभी बेस 3 है तब बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो जाएगा, हाइपोटेनस हाइपोटेनस ही रहेगा। अब इस सम के हिसाब से ये है सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब आगे की जो सम्स है, आगे की जो कॉन्सेप्ट्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। और if you like my video, once again, if you like my video, if you find my video interesting, knowledgeable, if this video benefits you, please do like, do share with your friends so that your friends might also get benefited. And if you have any further doubt, you can contact me in the comment section. In the next few videos I will give you my number, you can contact me over there. And if you I will from today onwards I'll going to teach you this trigonometry, and after the trigonometry section I will teach you subject wise like physics and mathematics for class 9 and class 10 for both ICSE and CBSE board schools. Okay, so stay with me, connect with the KM Tuitions channel, and thank you. Have a nice day.